और एक बार प्रभु का वचन के साथ ऐसा इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हम लोग को हर एक को सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. Thank God for helping us to gather together again for meditating on the word of God. ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതിനായി നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. प्रभु का वचन हमारी ज़िंदगी में शक्ति देता है, कृपा देता है. पिछली बार हम लोग हगाई भविष्यवाणी करने वाला प्रभु का दास के बारे में हगाई के पुस्तक से हम लोग पढ़ रहे थे. We were learning from the book of Haggai. ഹഗായിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദൈവം അവരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വാട്ട് ഡിഡ് ഗോഡ് ഡു ടു bring them back to the work of the temple of the God. प्रभु का मंदिर का काम के लिए वापस उन लोग को कैसा जगा कर उनको वापस लेके आया प्रभु का काम के लिए, हम लोग ये सारे बातें देखे थे. The first message that Haggai gave was the message of rebuke, शासन देता हुआ एक समाचार हम लोग सुने. ये Haggai का पहला अध्याय उसका 3 वचन से 11 वचन तक हम लोग को प्रभु का शासन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं. In the book of Haggai, chapter 1 from verses 3 to verse 11, we can see the chastening of God upon the people of Israel. ഇസ്രായേൽ के लोगों के ऊपर जो प्रभु का शासन था, ദൈവത്തിൻ്റെ ശാസനം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും അവർക്കൊരു വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെസ്സേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് दूसरा जो समाचार जो हम लोग देखे थे कि इट वॉज द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, उनको उत्साह देता हुआ एक वचन था. उसके बारे में हम लोग देखे थे कि 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. 3 बातें उनको बोलकर उनको उत्साह देते हैं. ഒന്ന്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ. दूसरा, God is saying that I am with you. Second thing is, രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ദൈവവചനം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह जो है, जो प्रभु का वचन है वो हमारे साथ में है. तीसरा जो है पवित्र आत्मा हमारे साथ में, परिशुद्धात्मा നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. The Holy Spirit also, Jesus Christ and the Holy Spirit also is with us. So we have 3 personalities of the Holy Spirit of God working along with us when we are in the will of God and want to obey his will. प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा और परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे साथ में काम करता है जब हम लोग प्रभु का इच्छा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने के लिए मन करते हैं. The presence of God is going to be with us when we are in the will of God. प्रभु का सानिध्य हमारे साथ में रहेंगे जब हम लोग प्रभु का इच्छा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो उसमें ये एनकरेजमेंट की जो बातों में और कुछ बातें प्रभु उनको उत्साह देने के लिए बोलता हुआ बात है. दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे. दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Yeah. Silver is mine and gold is mine. Okay, हिंदी में पढ़िए. चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरी ही है. Okay. सेनाओं का यहोवा का यह वाणी है. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചത്. വെള്ളി എനിക്കുള്ളത് പൊന്നും എനിക്കുള്ളത് എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ദൈവം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആലയത്തെ നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ്. मेरा जो मंदिर है उसको महिमा से मैं भर दूंगा बोलकर बोलने के बाद बोलते हैं कि सोना और चांदी मेरा है. गोल्ड एंड सिल्वर इज माइन. വെള്ളിയും പൊന്നും എൻ്റേതാണ്. उसका मतलब क्या है? ये मंदिर बनाते समय पर उनको बहुत खर्चा था, उनको बहुत सारे ज़रूरतें थे. दे हैड लॉट ऑफ नीड्स फॉर देयर लाइफ टू बी मेट. गॉड इज सेइंग यू डोंट वरी अबाउट ऑल दैट. प्रभु बोलता है कि वो सारे बातों के बारे में आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है.
വെള്ളിയും പൊന്നും എൻ്റേതാണ്. The gold and silver is mine. I will give you whatever you need for your work. आपका जिंदगी के लिए, आपका जीवन के लिए, आपका काम के लिए जो भी जरूरतें है सारे जरूरतों में पूरा करके दूंगा. क्योंकि प्रभु का मंदिर बनाना, प्रभु का इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना, ये प्रभु का मुख्य विषय था. God's main purpose was to that his children walk according to his will. And he said that you don't worry about anything apart from the cost. അതിന് എന്ത് വില വരും, അതിനെന്ത് മുടക്കണം, എല്ലാം ദൈവം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഈ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. God is saying that you don't worry about any of the needs that you require. वो प्रभु का काम के लिए आपके जिंदगी में जो भी जरूरतें हैं सारे जरूरतों को मैं पूरा करके दूंगा. प्रभु तो सोना और चांदी मेरा ही है, मैं दूंगा आपको. Gold and silver is mine. Who made the gold? Who made the silver? Anybody today? People are digging it out from the earth and they are making different things of gold. आज सोना का बहुत सारे बातें मिट्टी से निकाल कर उन लोग बनाते हैं. मिट्टी से निकाल कर वो सोने के बहुत सारे बहुत सारी चीजें बनाते हैं. प्रभु होता है कि सोना चांदी मैंने बना है. आई हैव मेड द गोल्ड एंड सिल्वर एंड इट इज इन माई हैंड. मेरे हाथ में है, मैं दूंगा. जो भी जरूरत है मैं दूंगा उसके लिए, प्रभु का काम के लिए मैं दूंगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग. चौथा बात बोलते हैं, the third thing, the fourth thing that God says is in 2 verse 9. उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन में ऐसा लिखे हैं, पढ़िए. So Haggai chapter 2 verse 9. The glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. Yeah, the glory of the latter temple will be bigger or greater than the older one. Okay, हिंदी में इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी. सेनाओं का यहोवा का यह वचन है. So the प्रभु बोलता है कि जो इस मंदिर का जो महिमा है वो पहला मंदिर से भी बढ़कर रहेंगे. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. ഈ ആലയത്തിന്റെ പിന്നത്തെ മഹത്വം മുമ്പിലത്തേക്കാളും വലുതായിരിക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ഈ ആലയത്തിന്റെ മഹത്വം പിന്നിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പണിത ആലയത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഈ ആലയത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. So God said that okay, in the earlier temple there was a glory that was revealed. पुराना जो मंदिर में एक महिमा प्रकट हुआ था, वो मंदिर प्रकट होने के बाद प्रभु बोलता है अभी ये नया मंदिर जो बनाने वाले हैं वो मंदिर का महिमा उससे बढ़कर रहेंगे. द ग्लोरी ऑफ द टेम्पल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी बिल्ट बाय जेरुब्बाबेल से जो बनाने वाले जो ये मंदिर है उसका महिमा पहला मंदिर से बढ़कर रहेंगे. So it is very important. God saying that the glory will not be the same as you had of old. अभी हमारी जिंदगी में हम लोग एक प्रभु का मंदिर का एक काम में है. आज हमारी जिंदगी हम लोग खुद एक प्रभु का मंदिर है. നമ്മൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ദൈവം നമ്മളെ ഒന്ന് പണിയാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, if we are allowing God to make this temple of ours, then God's word is very clear. The latter house glory will be greater than anything that was built before. ये पुराना जो मंदिर में जो महिमा था उससे बढ़कर एक महिमा प्रभु अभी हमारे जिंदगी में, आज प्रभु एक मंदिर हमारे जिंदगी के द्वारा प्रभु बनाते हैं. तो ഇന്ന് നമ്മൾ മുഖാന്തരം ഒരു ആലയം ദൈവം പണിതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആലയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആയി തീരുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവം പറയുന്നത് latter house will have greater glory than the earlier one. अभी का जो पहले मंदिर का जो महिमा था उससे बढ़कर एक महिमा प्रभु हमारी जिंदगी में प्रभु प्रकट कर देंगे. That is always the situation, and God through the prophet Haggai is telling to the people of Israel. इजराइल के लोगों से ये बात कर रहेगी जो महिमा पहला था उससे बढ़कर रहेंगे अभी का महिमा. So that was a word that God gave to encourage them. ओके और एक बात बहुत स्पष्ट हम लोग देखते हैं, उसका 6वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. इट इज द 6th verse. For thus says the Lord of hosts, once more it is a little while, I will shake heaven and earth, the sea and dry land. 7 also. And I will shake all nations,
and they shall come to the desire of all nations. And the desire of all nations shall come. Okay, हिंदी में पढ़िए, 7वां वचन पढ़िए, 6वां 7वां वचन पढ़िए. गाय दूसरा अध्याय മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഇനി കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കടലിനെയും കരയെയും ഇളക്കും. ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും. സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും. സകല ജാതികളുടെ മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും. മലയാളത്തിൽ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. ആ മനോഹര വസ്തു ആരാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ഡിസയർ ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് ഷാൽ കം. ഓക്കെ, हिंदी में पढ़िए. 7 सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी. इधर भी हिंदी में भी मन भावनी वस्तु आएंगी. सारे जातियों का मन भावनी वस्तु आएंगी. तो उसके पहले एक बात लिखा है कि आई विल शेक ऑल नेशंस. गॉड इज टेलिंग देम समथिंग. प्रभु ऐसा बात कर रहे कि मैं सारे जातियों को, सारे देशों को मैं हिलाने वाला हूं. और हिलाने के बाद प्रभु बोलता है कि आई विल what he will do, he said that I will bring the desire of all nations. മനോഹര വസ്തു ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. ആരാണ് ഈ മനോഹര വസ്തു? Why God is saying about this desire of all the nations? That means a time is coming. ऐसा एक समय आएंगे जब प्रभु चाहेंगे कि अपने राज्य का समय आ चुका है. Hallelujah. I will explain it a little more. A time will come when everything will be shaken up. हर एक बातें जो आज दिख रहा है, सारे बातें हिलने का समय या हिलाने का समय आएंगे. उस समय पर लोगों का शांति निकल जाएंगे. The peace on the earth will be completely taken off. Then people will not have peace. Then all the nations will only desire one thing. सारे जातियां एक ही बात चाहेंगे. क्या चाहेंगे? हम लोग को शांति देता हुआ एक राजा हम लोग को चाहिए. हम लोग को शांति देता परमेश्वर चाहिए. हम लोग को अच्छा एक राज्य करने वाला एक सरकार हम लोग को चाहिए. Today also when we go through our situations, आज हमारे जिंदगी की अवस्थाओं को देखते समय पर अवस्था ऐसा है, पूरा दुनिया को हिला डाला है कोरोना वायरस. हर एक लोगों का, अनेक जातियों के बीच में शांति निकल चुका है. और उस समय पर एक की चाहत जो होता है लोगों के जिंदगी में, उन लोग चाहत होते हैं हमारे, उनके the desire starts changing of their lives. They have only one desire. We need peace. हम लोग को शांति चाहिए. हम लोग को शांति चाहिए. शांति देता हुआ एक राज्य हम लोग को चाहिए. ये एक की चाहत दुनिया के राज्यों को रहेंगे. ഈ ഒരു ആഗ്രഹം കാണത്തുള്ളൂ. അന്നേരമാണ് പറയുന്നത് ഈ മനോഹര വസ്തു, അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ മനോഹര വസ്തു, ये मनोहर एक चीज, मैं हिंदी में क्या बोले हैं? मन भावनी चीज उस समय पर आएंगे. वो है प्रभु यीशु मसीह. कारण यीशु मसीह का नाम बोलते समय पर शांति का राजकुमार, समाधान प्रभु യേശു ക്രിസ്തു അന്നേരം വരും, രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വരും. So he's talking about something that is going to happen ahead. एक आने वाले बातों के बारे में बोलते समय पर बोलता हुआ एक बात है कि मेरा राज्य स्थापन करने का समय आ रहा है. हालेलुया. 9वां वचन पढ़ते समय पर and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. 9वां वचन हम लोग पढ़ते समय पर ये जगह पर मैं शांति दूंगा, ഞാൻ സമാധാനത്തെ കൊടുക്കും. हालेलुया. तो ये एक एनकरेजमेंट था उनके लिए, ये काम को आगे बढ़ाने के लिए. ഈ പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവർക്ക് ഒരു ഉത്സാഹം കൊടുക്കുകയാണ്. ओके, so the third message हम लोग पर आते समय पर God is giving them a promise, a word of promise. उसका दूसरा अध्याय 18 और 19 पढ़ते समय पर हम लोग पढ़ते हगाई chapter 2 verse 18 and 19, the word of promise, वाग्दान का एक वचन. Consider now from this day forward. From this day forward.
from the 24th day of the 9th month. Yeah, so that is one part. He's saying that you don't consider now anything that has happened before. You consider from now and this day forward. Don't look back. You always look forward. प्रभु बोलता है कि आज से हिंदी में पढ़िए. अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई उस दिन से लेकर 9वें महीने के इस 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो. Consider now from this day and upward. In English le it is മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് മുൻപോട്ട് ദൃഷ്ടി വെക്കുക. Yeah, that is a very clear. ഇന്ന് തൊട്ട് മുൻപോട്ട് ദൃഷ്ടി വെക്കുക. आज से आगे की ओर आप सोचो. पुराने बातें आज तक प्रभु ने आपको ले चलाए, वो बातें भूलने की बात नहीं बोल रहा, लेकिन प्रभु होता है टुडे ऑनवर्ड्स लुक फॉरवर्ड. डोंट लुक बैक, लुक फॉरवर्ड. आगे आगे सोचो. 19वां वचन उसका एंड ऑफ 19. But from this day I will bless you. From this day will I bless you. Okay, हिंदी में. परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता हूं. आज के दिन से मैं तुमको आशीष दूंगा. മലയാളത്തിലെ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. अब God is saying that from this day you look forward, don't look back. Don't go back on what you promised. Don't go back on what you started. आज जो काम शुरू किया है वो काम से आप पीछे हटना नहीं, आगे ही सोचना, आगे ही देखना. Always look forward. And when you do that, आप ऐसा करते हैं तो प्रभु बोलता है कि आज से मैं तुमको आशीष करूंगा. I will bless you from today. If you make up your mind to look forward and do what God wants you to do. प्रभु जो करना चाहते हैं वो करते हैं तो आज से आप आगे सोचते हैं तो प्रभु का वचन ऐसा बोलता है कि आज से प्रभु का आशीष आपके ऊपर रहेंगे. ये प्रभु उनको एक वाग्दान दे. ദൈവം അവർക്കൊരു പ്രോമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. God is giving them a promise. The promise is that today onwards I'm going to bless you. आज से मैं आपको आशीष करूंगा. Okay, so that was the word of promise, and the fourth message that he is giving is the word of prophecy. एक भविष्यवाणी देता है. Okay, 2 verse 22. I will overthrow the throne of kingdoms. Yes. I will destroy the strength of the Gentile kingdoms. Gentile kingdoms I will destroy. Completely destroy. That is God's word. प्रभु का वचन बोलता है सारे जातियों का राज्य को मैं खत्म कर दूंगा. हिंदी में पढ़िए. मैं राज्य की गड़ी को उलट दूंगा. मैं अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा. अन्य जातियों का राज्य का बल मैं तोड़ दूंगा. That is what God's word is saying. That is he's showing Haggai the things that are going to happen. जो होने वाले बातों के बारे में अच्छी तरह से प्रभु उनको सिखा रहा है. बोलता है कि अन्य जातियों का बल को प्रभु कंप्लीटली तोड़ देंगे. जो प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है, प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रभु जो प्रभु को लगता है कि ये दुष्ट काम है, दुष्टता से है, वो सारे राज्यों का बल को प्रभु तोड़ देंगे. God will destroy the strength of the Gentile kingdoms. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. ഞാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനം മറിച്ചിടും. രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനം മറിച്ചിടും. ജാതികളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ബലം നശിപ്പിച്ചു കളയും. ജാതികളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ബലം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും. And today when you see what things happening, God's word is already becoming true. आज हम लोग देखते समय पर प्रभु का वचन पूरा हो रहा है. अनेक राज्यों का बल खत्म हो रहा है. Today if you see the monetary economic situations, which was at one point of time a big strength for many kingdoms, बहुत राज्यों के लिए जो शक्ति का बात था, बल की बात था, पैसा, वो प्रभु आज तोड़ रहा है. प्रभु अन्य जातियों का राज्यों का बल को प्रभु तोड़ देंगे. That was a prophecy that God gave to Haggai. Haggai के द्वारा प्रभु एक भविष्यवाणी कर रहा है जो अंतिम काल में होने की बात है. और आज हम लोग ये अंतिम काल में ये पढ़ते समय पर कितना सच बात है.
ഇന്ന് നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പം എത്രയും സത്യമായിരിക്കുന്ന വചനമാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പം നടക്കുന്നു. പലരുടെയും ബലം ദൈവം നശിപ്പിച്ചു കളയാ. बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे राज्यों का बल को प्रभु कंप्लीटली तोड़ रहा है. ये प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन वैसे ही पूरा होगा. ओके, और एक बात, ये जरुब्बाबेल को प्रभु खास करके प्रभु एक भविष्यवाणी देता है. There was another prophecy to Zerubbabel. Why Zerubbabel? Because he was the one who took the initiative to get all the people together and start the work of God. प्रभु का लोगों को एक साथ इकट्ठा करके प्रभु का काम को शुरू करने के लिए मदद किया हुआ व्यक्ति बोला तो जरुब्बाबेल था. इसलिए जरुब्बाबेल के बारे में प्रभु एक भविष्यवाणी देता है और उसको 23वां वचन हम लोग पढ़ दें. In that day says the Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, says the Lord. And will make you like a signet ring. For I have chosen you, says the Lord of hosts. Okay, तो प्रभु हिंदी में पढ़िए. सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शीतेल के पुत्र मेरे दास जेरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा. I will make you a signet ring. और हिंदी में बोलता है मैं तुम्हें एक अंगूठी के जैसा मैं आपको बना दूंगा. हिंदी മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. അന്നാളിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്, എന്റെ ദാസനായ ശെയല്തീയേലിന്റെ മകനായ സെരുബ്ബാബേലേ, ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് മുദ്രമോതിരമാക്കും. Okay, I will make you like a signet ring. Okay, what is the meaning? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि God used Zerubbabel, or God used Zerubbabel's name to come in the genealogy line of Jesus Christ. यीशु मसीह का वंशावली में आने के लिए Zerubbabel का नाम उधर आ गया. हम लोग पढ़ेंगे. If you want to just go through, just make sure that yes, it was, he came into the royal line. He came into the जो राजकीय जो वंशावली था, उस वंशावली में जरुब्बाबेल का नाम आ गया. मत्ती 1 अध्याय उसका 12 वचन हम लोग पढ़ते समय पर आप लोग जस्ट नोट कर देना. यू कैन नोट दिस इन द नोट इन द वर्क. इट इज रिटन वेरी क्लियरली. Zerubbabel begat Abiud, and Abiud begat Eliakim, and Eliakim begat Azor. Sorry, 12th verse. And Shealtiel begat Zerubbabel. 12th verse, 1 verse 12. Matthew chapter 1 verse 12. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1:12 യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയില് ജെറുബ്ബാബേലിന്റെ പേര് വന്നു. അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അവനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച, അവനെ ഒരു മോതിരമാക്കുന്ന പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ദൈവം ഓൾറെഡി ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡൺ, that he came into the royal line. Okay, one more verse which proves that. Luke chapter 3, लूकोस का 3रा अध्याय उसका 27वां वचन. Luke chapter 3 verse 27. मेरी का genealogy में Zerubbabel का नाम आया. In the genealogy of Mary also the name of Zerubbabel has come. Luke chapter 3 verse 27. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം. അവിടും which was the son of Joanna, which was the son of Reza, which was the son of Zerubbabel, which was the son of Shealtiel, which was the son of Neri. So Zerubbabel का नाम दोनों वंशावली में आया. Praise the Lord. God's prophecy was fulfilled there. प्रभु का जो भविष्यवाणी था Zerubbabel के बारे में, उसका प्रभु पहले से जो भविष्यवाणी किया वो पूरा कर चुका है. हालेलुया. Praise the Lord. तो ये था हगाई का जो भविष्यवाणी का पुस्तक है. एक सारांश हम लोग जो देखे थे. It was like a summary that we could see in the book of Haggai. But I want to bring another very important message from this book. Why was God so important? Why was God so concerned about his temple? प्रभु अपना मंदिर के बारे में इतना प्रभु ध्यान क्यों दे रहा है? Why is God so worried about his temple?
ओके, हम लोग पढ़ेंगे पुराना नियम से। वो समझने के लिए पहला हम लोग को एक बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। वी नीड टू हैव अ बैकग्राउंड। व्हाट इज द टेम्पल ऑफ गॉड? प्रभु का मंदिर बोलो तो क्या है? प्रभु का मंदिर बोले तो उसका जो सोच है, उसका जो वेयर डिड इट स्टार्ट, किधर से शुरू हुआ है। और पूरा बाइबल में हम लोग को ये प्रभु का मंदिर के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। वी गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेम्पल ऑफ गॉड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। ओके, हम लोग शुरुआत के लिए हम लोग देखेंगे प्रभु का मंदिर का एक शुरुआत हम लोग को कुछ लोगों को, सब लोगों को पता है कि मूसा के द्वारा प्रभु ने एक तंबू बनाया। गॉड मेड अ टैबरनेकल, समागमन കൂടാരം ദൈവം മോശെ മുഖാന്തരം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി. It was written that God wanted his people to come and worship him in the wilderness. ദൈവം തന്റെ ജനം മാറി നിന്ന് ദൈവത്തെ വന്ന് ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. God had a desire that his people should come out and worship him in the wilderness, and God made a way for that. प्रभु उसके लिए एक रास्ता बनाया. प्रभु एक मंदिर के रूप में एक तंबू बनाने के लिए बोले. वो तंबू हाथों से लेकर हम लोग को उठा के लेके चलते थे. इट वॉज अ पोर्टेबल टेम्पल. एक उठा के लेके चल सकता हुआ ऐसा एक मंदिर था. और लिखा है कि करीबन 400 साल तक उनके साथ था. ऑलमोस्ट 400 years they had this tabernacle. ये तंबू जो है ഈ സമാഗമന കൂടാരം 400 വർഷത്തോളം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. हालेलुया. इसके बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं. बीच में अन्य जातियां ये प्रभु का जो पेटी को लेके जाते हैं. The ark of God was taken up by the enemies, and then it was brought back, and it was kept at a place called Shiloh. शिलो के जो जगह है उस जगह पर रखा हुआ ये प्रभु का मंदिर, ये प्रभु का जो तंबू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. That's why it is also called as a tabernacle of Shiloh. शिलो का जो तंबू के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है. So that is the first thing or the first temple that we can see in the Bible. पहला जो मंदिर बोल के जिधर लोग मिलकर प्रभु को आराधना करने के लिए आते हैं या प्रभु को बलिदान करने के लिए आते हैं. पुरोहित लोग अंदर जाके सेवा करते हैं. ये सारे बातें हम लोग को पहला जो टेम्पल हम लोग मूसा के द्वारा हम लोग पढ़ा हुआ बनाया हुआ हम लोग को पढ़ते हैं. ആദ്യമായി ദൈവം സമാഗമന കൂടാരം മൂസ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശലോമോൻ ഒരു मंदिरम ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു. दावीद ने प्लान किया, दावीद ने सारे चीजें लेके आया, लेकिन शलोमोन एक प्रभु के लिए एक मंदिर बना रहा है. God is making Solomon to build a temple for him. Although David had the desire to do it, दावीद को ये एक इच्छा था तो भी शलोमोन के द्वारा प्रभु ने एक मंदिर बनाया. രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശലോമോൻ മുഖാന്തരം ദൈവം ഒരു ആലയം ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, അത് ദാവീദിനായിരുന്നു ആഗ്രഹം, ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹം. ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, നിന്റെ മകൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശലോമോൻ മുഖാന്തരം ഒരു ആലയം ഉണ്ടാക്കി. ആ ആലയത്തെ ഒരു രാജാവ്, ബാബിലോണിന്റെ രാജാവ് അതിനെ വന്ന് നശിപ്പിച്ചു. The temple that Solomon had built was destroyed by the king of Babylon. Let us read 2 Kings chapter, दूसरा राजा उसका 25वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 25वां अध्याय उसका 21वां वचन. 2 Kings chapter 25 verse 21. It is written that the king of Babylon, read in English. Then the king of Babylon struck them and put them to death at Riblah in the land of Hamath. Thus Judah was carried away captive from its own land. Okay, हिंदी में पढ़िए. तब बाबेल का राजा ने उन्हें हमात के देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए, जो यहूदी बंधुओं बन के अपने देश से निकल दिए गए. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. ബാബേൽ രാജാവ് ഹമാത്ത് ദേശത്തിലെ റിബ്ലയിൽ വെച്ച്
Okay, so यरूशलेम को पूरा रीति से कब्जा करते समय पर बाबिलोन का राजा ने ये मंदिर को भी तोड़ दिया बोलकर हम लोग इतिहास में हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है. It is when they seized Jerusalem was seized by the king of Babylon and he smote everybody, सबको खत्म कर दिया और यूदा के लोगों को उधर से बंदी बोल के लेके गया और उस समय पर पूरा रीति से उधर नाश करके आया और उस नाश में प्रभु का जो मंदिर जो था जो सलोमन के द्वारा बनाया वो मंदिर को उधर टूट गया बोलकर हम लोग इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं. Okay, there is another temple that we don't read much, ज्यादा हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन एक दर्शन प्रभु देखता है. एजेकिएल भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति को एक दर्शन में उसको एक मंदिर का एक दर्शन देता है. വേറൊരു ആലയത്തെക്കുറിച്ച് എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന് ദൈവം ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആലയം ഇതുവരെ പണിതിട്ടില്ല. वो जो मंदिर है वो अभी बना नहीं है, अभी स्वर्ग में बन रहा है या उसी का पैटर्न है पता नहीं, लेकिन God shows a vision to Ezekiel and it is called the unbuilt temple. उधर जो मंदिर है जो प्रभु ने जो एसेकिएल भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति को एक दर्शन के रूप में दिखाया था. He had shown it as a vision. If you read from Ezekiel chapter 40 onwards, you can see the description of the temple. पूरा जो मंदिर का एक दर्शन उसको अच्छी तरह से प्रभु देता है. ओके, ऐसा एक मंदिर अभी तक बना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में बन रहा है या फ्यूचर प्रभु बनाने का एक मंदिर का एक जो चित्र है या पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है, हम लोग कुछ भी हम लोग को पता नहीं. बट देन वन थिंग इज वेरी श्योर दैट गॉड हैज अ ग्रेट प्लान फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल. बहुत बड़ा एक मंदिर प्रभु के लिए एक महिमा होता, प्रभु को महिमा देता हुआ एक मंदिर हम लोग को ऐसा हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है. ओके, एक खासियत है इस मंदिर का. देयर इज अ स्पेशलिटी अबाउट दिस टेम्पल. नॉर्मली द टेम्पल इज वाइड एट द बेस एंड इट टेपर्स टुवर्ड्स द टॉप. एक मंदिर बनाते समय पर उसके जो बेस है, जो नेव है, नेव में उसका चौड़ाई ज्यादा रहता है और वो ऊपर की तरफ वो पतला होते जाता है. लेकिन इस मंदिर के बारे में पढ़ते समय पर इधर खास करके ऐसा लिखा है कि it is very narrow at the base and it becomes broad at the top. जब वो जो उसका बेस में उसका नेव में उसका बहुत चौड़ाई कम है और एक ट्रायंगल के जैसा, उल्टा ट्रायंगल के जैसा ऊपर की तरफ उनका जो चौड़ाई ज्यादा होता है. ये दर्शन हम लोग को एसेकिएल भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति के द्वारा हम लोग को पढ़ते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. तो ഫസ്റ്റ് ഈസ് സമാഗമന കൂടാരം, 2 ശലോമോന്റെ ആലയം, 3 എസെക്കിയേലിന് കൊടുത്ത ഒരു ആലയത്തിന്റെ ഒരു ദർശനം. पहला जो है प्रभु का तंबू जो मूसा के द्वारा बनाया, दूसरा जो है सलोमोन के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, तीसरा जो है एसेकिएल के द्वारा प्रभु ने एक दर्शन देखकर उसको एक मंदिर का एक ब्लूप्रिंट देता है. चौथा एक बात हम लोग को बाइबल में पढ़ता है प्रभु का मंदिर के बारे में, जिधर प्रभु अपने मंदिर बनाने के लिए चाहा हुआ परमेश्वर एक ही चाहता कि अपने लोग प्रभु के पास आए, प्रभु को आराधना करे, प्रभु को स्तुति करे, प्रभु के साथ प्रभु का भजन गाए, प्रभु के साथ रहे. ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം എപ്പോഴും ഒരു he had a vision about his people coming to him. हमेशा प्रभु का एक ही दर्शन था कि अपने लोग अपने पास आए और अपने पास रहे. തന്റെ ജനം തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തന്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒറ്റൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ ദൈവം ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ये इजराइल जन जो है जब उनका देश के ऊपर कब्जा करके उन लोग वापस चले जाते समय पर, when this Israeli people they were taken captives, wherever they went they built something called synagogues. जब ये लोग, जब इजराइल के जन बंदी होकर बाहर गए, they went away from their own country,
अपने देश को छोड़कर अलग अलग देशों में जाते समय पर उन्होंने एक मंदिर जैसा एक पैटर्न में एक चीज को बनाया, उसको बोलता है सिनेगोग। मलयालത്തിൽ പള്ളി എന്ന് പറയും। ओके, सो सिनेगोग्स ऐसा एक जगह था, उधर एक बलिदान का अवस्था नहीं था, सिर्फ उन लोग प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए और आराधना करने के लिए आता हुआ एक जगह। सिनेगोग इज अ प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर फॉर वर्शिप एंड टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। Okay, we see about synagogues in the New Testament, we see in Corinth, we see in the Acts of Apostles, अलग-अलग जगह पर हम लोग को ये synagogues के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। പള്ളിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പിന്നെ കൊരിന്തിയുടെ ചർച്ചിൽ നമുക്കിതെല്ലാം അത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ synagogues is a place where people came together to meditate on the word of God and to worship. प्रभु का वचन को ध्यान करने के लिए और प्रभु को आराधना करने के लिए आता हुआ एक जगह था ये synagogue. സിനഗോഗ് വന്ന സ്ഥലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയിൽ അവർ എന്തിനാ വന്നത്? അവിടെ യാഗങ്ങളില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുവാനും വരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു synagogues. So the fourth temple or the fourth place where God through his people built or the idea of the temple was synagogue. And the fifth temple, पांचवा जो था, जो जरुब्बाबेल ने बनाया हुआ टेम्पल, द फिफ्थ टेम्पल, द सिनेगॉग्स जो है, जिधर जिधर उन लोग बिखर के गए, उन लोग उधर बनाए। बोलो तो अन्य देश में, जातियों के देश में बनाया हुआ जगह, जातियों के देश में बनाया हुआ जो मंदिर को उन लोग सिनेगॉग बोलते थे। wherever the people of Israel went out and they went into captive lands, and there they made the synagogues. But when God told them, you come back to the land of Israel, इज़राइल के देश में वापस आओ और मेरे लिए एक मंदिर बनाओ, started to rebuild the temple through Zerubbabel. Okay, that is in the book of Ezra, we can study that. Ezra के पुस्तक में हम लोग को ये बात हम लोग को पढ़ने के लिए मिल सकता है. Okay, so आज के लिए मैं इतना तक मैं इधर बंद करूंगा, लेकिन हम लोग को total we need to study about 11 temples. हम लोग को 11 टेम्पल्स के बारे, 11 जो मंदिर के बारे में हम लोग को पढ़ना जरूरी है. हम लोग पहला जो देखा, प्रभु का तंबू, द टैबरनेकल और समागमन कूड़ार. दूसरा जो हम लोग देखा, शलोमोन का टेम्पल, शलोमोन ने बनाया हुआ मंदिर, शलोमोन पणद आलय. तीसरा जो है एसकेल, जो दर्शन देखा, एक मंदिर के बारे में हम लोग को पढ़ना है. उसके बारे में हम लोग को एसकेल भविष्यवाणी करने वाला 40वां अध्याय से हम लोग को ये पढ़ने के लिए मिलता है. चौथा जो है सिनेगॉग्स, जो इज़राइल के जन अपना देश छोड़कर बाहर जाके बनाया हुआ, प्रभु को आराधना करने के लिए और प्रभु का वचन मनन करने के लिए बनाया हुआ जो जगह जो था, सिनेगॉग्स. और पांचवा जो है जरुब्बाबेल के द्वारा, अभी हम लोग हगाई का पुस्तक में हम लोग पढ़ा हुआ जो हगाई जो प्रेरणा हो, प्रभु का प्रेरणा मिलकर भविष्यवाणी करके लोगों से बात करके जरुब्बाबेल के द्वारा बनाता हुआ टेम्पल जो है, वो पांचवा जो है, इट इज द फिफ्थ टेम्पल दैट इज बीइंग रिवील्ड इन द बुक्स. जो प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ने के लिए मिलता हुआ पांचवा टेम्पल है. ओके, इसके हम लोग आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वी विल कंटिन्यू दिस ऑन द टेम्पल ऑफ गॉड. वी विल स्टडी मोर. वी नीड टू स्टडी अबाउट 11 टेम्पल्स. 11 ആലയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. प्रभु हम लोग को सबको सहायता करेंगे. प्रभु आपको आशीष करेंगे. हम लोग शनिवार शाम को 8 बजे हम लोग वापस मिलेंगे. सैटरडे नाइट 8 o'clock वी विल अगेन meet for the meditation of the word of God. प्रभु का वचन का मनन के लिए हम लोग शनिवार शाम को 8 बजे, ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും നമ്മൾ കൂടി വരും. प्रभु हम लोग को सबको सहायता रहे. प्रभु हम लोग को सबको आशीष करे. गॉड लेट गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस एंड गॉड बी विद अस. हम लोग प्रार्थना करेंगे. प्यारे प्रभु, हम आपके सन्निधि में आते हैं. प्रभु जी, आपका वचन हम लोग पढ़ते समय पर प्रभु जी आपका मन की चाहत हम लोग की ज़िंदगी में अच्छी तरह से प्रकट करके मिलने के लिए प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करते हैं. प्रभु जी, आपने हगाई के द्वारा प्रभु जी जो भविष्यवाणी के रूप में हालेलुया प्रभु जी हमारे लिए लिख के रखा हुआ, प्रभु जी आपके
मंदिर होकर जीवन बिताता हुआ जो अवस्था जो है प्रभु जी, आपका मंदिर के लिए जो काम करना है, सारी बातें प्रभु जी हम लोग को अच्छी तरह से समझने के लिए, प्रभु आपके मन का जो सोच जो है, प्रभु आपका मंदिर के बारे में जो सोच है हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी अच्छी तरह से समझने के लिए वो हमारी ज़िंदगी में सहायता करना। ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് തരണം ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ. നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മനസ്സിലെ ഇരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാകുവാൻ ദൈവമേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണേ. हालेलुया. प्रभु आप हम लोग को सिखा के देना प्रभु जी. आप हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे, विश्वास करते हैं. सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं प्रभु जी. सुनाया हुआ हर एक वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. गॉड ब्लेस यू. गॉड बी विथ यू.